ना, ये एडिक्शन की तरह है, नशा है ये। एक बार आप अंदर घुसोगे और आपको थोड़ा भी सक्सेस मिल गया, आपने सक्सेस चख लिया ना, फिर आप उसमें घुसते जाओगे। पिप्पू राइट, यू जस्ट इमेजिन कि मैंने अपना पिप्पू सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट हैंड फ्री यूज़ सर्टिफिकेशन करना है? 2005 में किया था, हैंड फ्री यूज़ फोर करना है? फाइव में। क्योंकि उस टाइम मैं, जब मैं बिरला के साथ काम करता था, तब मैं ये सब कंसेप्ट चख चुका था, और इसलिए फिर सेल्फ लर्निंग से मैं इसके अंदर घुसता ही गया। एंड दैट इज द रीजन आई एम हैविंग सो मच डेप्थ इन दिस सब्जेक्ट, और पर से इन एचआर इटसेल्फ। बट आई टॉक वेरी फंडामेंटली, मैं जार्गन्स यूज नहीं करता, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं आई एम वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड। राइट, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज दैट who is that lady who is doing this project? निराली राजगुरु. Nirali, what project you are doing? I am into L&D. I am taking care of L&D. So I am doing this project particularly as you said HRVP. So it is kind of a learning business partner. So how we can improve our TQM quality, and for that we are in the process of doing or gaining an award, Deming Award, and the Naming second. award. Okay. Yes, Aditya so Birla won this, Birla Kharach unit won this naming award way back in 2002, 2003. yeah. Right, and so you are into manufacturing or service? Yeah, I'm into manufacturing agrochemicals. Manufacturing, right. So you must be, I think, okay, you must be preparing your application based on the Malcolm Baldrige assessment, right? Yes, Malcolm Bell. Where you have 7 criteria of leadership, quality, process, people, customer, Absolutely. and Absolutely. operations, right? So basically, like this is one of the project, and another one is for improving our total turnover, where we are adding our I can say learning Which efforts. organization you are working with? I'm working with UPL Limited. UPL. Yes, Okay. Yeah. Which unit? Bharuch? Bharuch. Yes, Bharuch. Earlier it was Search Chem, right? No, it is United Phosphorus Limited. It is the fifth largest Yeah. agrochemical in the I know, world. I know, I know. One of my student is there, or junior was there. I think you must be knowing Tushar Chauhan. I don't know. I'm not aware. I have Recently she joined that, so might be she will not meet that. But Okay, def- that is the reason you were asking is somebody from Bharuch or not. exactly. Right. I will put you in touch with Indrani Chatterjee. Indrani Chatterjee. I've heard this name, but not. She's I don't know. she's manager about HR business partner, Okay. and she Nice, has done nice. very excellent job in designing succession plans. Wow, nice. I will put you in touch with her. Sure. Right. Okay. Yeah. So coming You can back to share topic. your contact details later on. So. Yeah. MJ you can put it in group में तो है ही मेरा नंबर मेरे ख्याल से, और यहाँ पे भी चैट में अगर रखना हो तो रख दो. Right. Yeah. So a major issue faced by HR department was कि HR तो यार टाइम पे बंदे देता ही नहीं है सबका प्रॉब्लम ये, Right. right? So HR department was under tremendous pressure to deliver right candidate. So the methodology which we used for improvement was business process improvement methodology, along with design thinking, lean management, lean principle, HR analytics were applied, right? और नया process अच्छा हुआ. अभी मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था, right? So earlier this was the cycle time that was used to fill various positions in the organization. So इस पे से हमने जो Excel में से MJ हमने Excel में से ये डेटा निकाला है. Right, so we took out the variance, we took out the mean, we took out the standard deviation, right, and then we used the process capability formula to find out the process capability. That was 0.21.
सीपी वैल्यू, राइट। और 6 महीने वो सारे प्रिंसिपल्स और वो सारे मेथोडोलॉजीज अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि जो हमारे पास डेटा आया, जो वैकेंसीज भरने में टाइम लग रहा था, सो वेरिएंस वाज रिड्यूस सब्सटेंशियली, मीन कम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो गया, और अल्टीमेटली प्रोसेस कैपेबिलिटी वैल्यू आई 0.68। सो नाउ यू कैन सी कि 6 महीने में प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है वो कितना इंप्रूव हुआ है, राइट। सो मंथ ऑन मंथ का अगर मैं रिजल्ट तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो इट स्टार्टेड विद 0.21, दैट इज you can see over here 0.21, and then from 0.27, 0.41, 0.39, 0.58 and 0.68. so you can see statistically process improve हुआ है, हम देख सकते हैं, right? Correct. हम बात You have करते done हैं amazing work. sorry, You have done amazing work. right? so now the thing is that how हम बात करते हैं कि एचआर डेटा ड्रिवन नहीं है। अरे कैसे नहीं है? आपके सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट देख लो, सारे वैलिडेटेड स्टैटिस्टिकली, और तभी जाके वो अप्रूव हुए। डिस्क एनालिसिस कर लो, एमबीटीआई एनालिसिस कर लो, जो कुछ भी कर लो। सबसे पुरानी हॉथरॉन स्टडीज दैट इज बेस्ड ऑन डेटा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस निकले थे वहां से। हमारा जन्म ही एचआर का डेटा में से हुआ है, और हम रोते रहते। प्रॉब्लम है, हम रोते रहते इसलिए नहीं कि हमको डेटा नहीं मिलता, हमको पता नहीं है क्या करना है। दैट्स ट्रू। हमारा इग्नोरेंस हम फंक्शन पे डाल रहे हैं, हम फंक्शन को बदनाम कर रहे हैं। भगवान के लिए मत करो ऐसा। ये एक प्रॉब्लम था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2009-2010 में, राइट, जब मैंने कंपनी नई नई ज्वाइन की थी। एट दैट टाइम तुमको तो पता है मेडिकल प्रोसेस, मेडिक्लेम्स जो थे वो इतने ऑनलाइन नहीं थे जिस तरह से अब हो जाते हैं, राइट। सबको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते थे, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करता था, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आता था। एनीबॉडी हैज फेस्ड दैट प्रोसेस? यस सर, है ना। 2009, 10, 8, 9, 10 में तो हम ऐसे ही काम करते थे, मैन्युअली पूरा फॉर्म फिलअप करना और मैन्युअली पूरा फाइल भेजना। यस यस। तो हमने भी वो कंपनी में एक मेडिक्लेम पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, राइट। और बाद में हमने देखा कि 6 महीने के बाद जब देखा, तो जो प्रोसेस साइकिल टाइम था, क्लेम पास होने का साइकिल टाइम 129 दिन लगते थे, 129 डेज, और उन्होंने बोला था स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है 30 डेज में तो आपका आ जाएगा, राइट। अभी क्या था कि वर्कर लोग तो पैसा लगा देते थे, इधर उधर से लेके, किसी के पास से लेके खर्चा कर देते थे, फिर बोलते कि जब मेरा चेक आएगा तब मैं तुमको लौटा दूंगा। अभी ये 129 दिन यानी ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने लग जाते थे उसके, करेक्ट। यस। तो ये फिर गालियां खानी शुरू हो गई मैनेजमेंट की, गुनगुन एम्प्लॉयज में चालू हो गया। આટલું બધું પૈસા ખર્ચીને પણ ટાઈમ પર પૈસા તો મળતા નથી, ચેક તો આવતો નથી, શું કામનું? करोड़ों खर्च करने के बाद 4,500 लोगों का मेडिक्लेम प्रोसेस प्रीमियम भरने के बाद जब आपको ये सुनने मिले, तब सोचो कि एचआर में क्या हलवाड़ी मची होगी, राइट। और इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो इसको रिड्यूस किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए, राइट। सो आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वाज टू मेजर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मेडिकल प्रोसेस, मेडिक्लेम प्रोसेस एंड रिड्यूस द साइकिल टाइम, राइट। सो ये दो उद्देश्य के साथ हमने अपना प्रोजेक्ट चालू किया। सो टाइप ऑफ स्टडी वाज डिस्क्रिप्टिव, पॉपुलेशन वाज 175, सैंपल साइज वाज 89 एंड टाइप ऑफ सैंपलिंग वाज क्लस्टर। अभी रिसर्च डिजाइन आपके एमबीए में कितने लोगों ने पढ़ा था और कितने लोगों ने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया? स्पेशली एमएसडब्ल्यू एमएलडब्ल्यू वाले को में जो आता है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, राइट, जनरल ऑप्शन में निकाल देंगे। पॉपुलेशन भी हमने पढ़ा होगा, टाइप ऑफ स्टडी भी पढ़ा होगा, सैंपलिंग भी पढ़ा होगा और टाइप ऑफ सैंपलिंग भी पढ़ा होगा, लेकिन हम कभी अप्लाई करने की सोचते नहीं है, क्योंकि हमारा वो माइंडसेट नहीं है। पहली बात, अभी नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन आपको यूज कहाँ करना है वो नहीं पता, राइट। सो दैट इज द थिंग यू नीड टू इम्प्रूव गाइस, राइट। सो दीज वर द सैंपल्स, कितने प्रोसेस थे, कितने रिजेक्ट हुए, कितने इन प्रोसेस थे। देन वी स्टार्टेड विथ हाइपोथेसिस, राइट। सो वी हैव नल हाइपोथेसिस एंड वी हैव अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो दोनों में से किसी एक को गलत प्रूव करो और वो तो ऑटोमेटिक दूसरा राइट प्रूव हो जाएगा, राइट। सो देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल प्रोसेस साइकिल टाइम,
and there is no relationship. So we started with tools and techniques. We use process map, we use brainstorming session, we use fishbone diagrams, we use Pareto analysis, we use standard deviation, and we use process capability calculations. Right? So these were the photographs जो हमारे as an evidence जो हमको देना पड़ता है ना कि भाई आपने सही में कुछ किया था या नहीं किया था, तो हम उसके एविडेंसेस कलेक्ट किए. फिर हमने फिशबोन एनालिसिस किया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. सो ट्रेनिंग सिस्टम, प्रॉपर नॉलेज, फिर which reason was contributing maximum to the problem. Right? Pareto gives you 80-20 principle. So 20% of your problem, अगर तुम ये solve कर दोगे तो 80% of your problem solve हो जाएगा. So 80% was the contribution was the man or the process training. Right? So we design interventions, we design policy awareness programs, continuous training programs किए, communication किया case to case basis पे. These were the kind of sessions we did at shop floor with staff. ये कुछ example है, मैं just आपके साथ share कर रहा हूँ so that you can understand the kind of level that we executed this across 4,500 employees. Right? And then जब ये सब कुछ किया तब हमको रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए और प्रोसेस साइकिल टाइम रिड्यूस होना शुरू हुआ. राइट? और ये 129 डेज से फिर 82 डेज आया, फिर 64 डेज आया, फिर 53 डेज आया, फिर 42 डेज आया, फिर अल्टीमेटली 31 डेज आया. Right? And you can see the standard deviation has reduced from 88.72 to 5.56 slowly and gradually over a period of 6 months. और एमजे ये 2010 में सारा का सारा एक्सेल में. सर ग्रेट. राइट? मैं इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़े हाई-फाई टूल्स यूज नहीं किए थे. इवन एसपीएसएस यूज नहीं किया था मैंने. ग्रेट. लेकिन कहाँ पे हिट करना है वो आपको पता होना चाहिए. डेटा कलेक्शन हमने किया था, कौन सा ईमेल कब भेजा, कौन सा कुरियर नंबर ट्रैक किया था, कौन सा कुरियर कब गया और कब उसका चेक आया. वहां से मैन टू मैन मार्किंग, वो जो चकदे में बताया था ना, नॉर्थ कोरिया की या साउथ कोरिया की टीम को मैन टू मैन मार्किंग करता है, वैसा एक एक कुरियर जो भेजा था, एक एक ईमेल जो भेजा था, एक एक कम्युनिकेशन भेजा था, टीम ने उस पर काम किया और वो डेटा निकाला वहां से. Right? And these were the results that we got. And when I talk about the Six Sigma levels, CP values बढ़ने के साथ Sigma level भी बढ़ी है. And this was the first time in Panasonic somebody was talking about Six Sigma in HR. Wow, great. आप लोग भी कर सकते हैं. कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. अभी फर्दर एक्शन ये तो हो गया, एक लेवल अचीव कर लिया, आगे कहाँ जाएंगे उसका ये पूरा ये था और इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या हुआ.